हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग बात करेंगे एरेस के बारे में। नाउ व्हाट इज एन एरे? एरे क्या होता है? एरे एक वेरिएबल है जो बहुत सारी वैल्यूज को एक साथ स्टोर कर सकता है। ओके, अगर हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज हो ऑफ द सेम डेटा टाइप, ओके, और हमें उन्हें स्टोर करना हो तो हम एक एरे में स्टोर कर सकते हैं rather than creating multiple variables. Okay, an array is a variable that can store multiple values. Array, a kind of data structure that can store a fixed size sequential collection of elements of the same type. It can store a fixed size sequential collection of elements, okay, of the same type. An array is used to store a collection of data, but is often more useful to think of an array as a collection of variables of the same type. हम लोग array को कैसे सोच सकते हैं कि collection of variables है, okay? बहुत सारी variables की एक collection जो हमारे variables है उनका type भी same है, okay? तो उनकी जो collection होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Arrays. All arrays consist of contiguous memory location. Okay, contiguous memory location का क्या मतलब है? It means that consecutive blocks of memory is allocated to the user processes. Okay, the lower address corresponds to the first element and the highest address to the last element. जो हमारा lowest address होगा वो इसको correspond करेगा हमारे first element को and highest address to the last element. So types of arrays. There are two types of arrays: single dimensional array and multi-dimensional array. Now यहाँ पे हमें एक array दे रखा है जिसकी लेंथ क्या है 9, ओके, और array के इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 0 से, ओके। तो हमारा फर्स्ट इंडेक्स यहाँ पे क्या हुआ 0 और हमारा लास्ट इंडेक्स यहाँ पे क्या हुआ 1। 0th इंडेक्स पे हमारी कौन सी वैल्यू स्टोर हो रखी है 40, ऐसे ही फर्स्ट पे 55, सेकंड पे 63 एंड सो ऑन, ओके। फर्स्ट एलिमेंट कहाँ होगा हमारा? जहाँ हमारा 0th इंडेक्स है, ओके, यहाँ 0th इंडेक्स पे हमारे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है, और लास्ट एलिमेंट जो हमारा लास्ट इंडेक्स होगा, लाइक अगर हम लोग यहाँ 0 से स्टार्ट करें तो ये n-1th इंडेक्स होगा हमारा। Now the question comes, why do we need arrays? We can use normal variables like v1, v2, v3 when we have a small number of objects. But if we want to store a large number of instances, it becomes difficult to manage them with normal variables. The idea of an array is to represent many instances in one variable. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास स्मॉल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो तब हम लोग वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, ओके। बट अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, ओके, और हमें उनको स्टोर करवाना हो तो इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज देम विद नॉर्मल वेरिएबल्स, ओके। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वी मेक एन एरे। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एरे. Each element of an array is of same data types and carries the same size, that is int equal to 4 bytes. Each element of an array, हर एलिमेंट हमारा एरे का जो होगा वो सेम डेटा टाइप का होगा और उनका सेम साइज होगा, ओके। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग int टाइप का एरे बनाते हैं तो उसका साइज कितना होगा 4 bytes. Element of the array are stored at contiguous memory location where the first element is stored at the smallest memory location. Elements of the array can be randomly accessed since we can calculate the address of each element of an array with a given base address and the size of the data element. हम लोग हमारे जितने भी array के elements होते हैं उनको randomly access कर सकते हैं। कैसे? We can calculate the address of each element. हम लोग array में जो एक एलिमेंट होता है एरे का उसका हम लोग एड्रेस निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हमारे पास उसका बेस एड्रेस और डेटा एलिमेंट का साइज हो। नाउ डिक्लेयरिंग सिंगल डायमेंशनल एरेज, क्या सिंटैक्स होता है? सबसे पहले डेटा टाइप, देन हमारे एरे का नेम एंड देन एरे साइज। एग्जाम्पल इंट मार्क्स एंड ब्रैकेट में हमारा 5। तो इंट यहाँ पे क्या है हमारा डेटा टाइप, marks array name and 5 is the size of the array. Initialization of array. अब हम लोग array को कैसे इनिशियलाइज करते हैं? हम लोगों ने यहाँ एक array
डिक्लेयर करा, ओके, ब्रैकेट में उसका साइज लिखा, ठीक है, एंड देन कर्ली ब्रैकेट में उसकी वैल्यूज लिखी। फर्स्ट मेथड इज दिस, ओके। नेक्स्ट इज हम लोग डेटा टाइप और नेम लिख के इस ब्रैकेट को खाली छोड़ के अगर हम लोग ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में यहाँ उसकी वैल्यूज लिख दें, ओके, देन दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो अगर हम लोगों को जैसे बैलेंस एट 4, ओके, अगर हमें इसको एक्सेस करना है तो कैलकुलेट करते हैं 0 1 2 3 4। तो एरे की 4th इंडेक्स पे कौन सा एड्रेस स्टोर हो रखा है? 50। हमारा आंसर में क्या आएगा? 50। एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स, हम लोग एरे के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? एन एलिमेंट इज एक्सेस बाय इंडेक्सिंग द एरे नेम। एलिमेंट्स कैसे एक्सेस हो सकते हैं? बाय इंडेक्सिंग द एरे नेम। दिस इज डन बाय प्लेसिंग द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट विद इन स्क्वायर ब्रैकेट आफ्टर द नेम ऑफ द एरे। कैसे कर सकते हैं? डबल सैलरी इक्वल टू बैलेंस ब्रैकेट में 9। इसका क्या मतलब हुआ? It means that the above statement will take the 10th element from the array and assign the value to salary variable. ये बैलेंस 9 हमारा 10th एलिमेंट लेगा और जो इसकी जो वैल्यू होगी वो इस सैलरी वेरिएबल में असाइन कर देगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं। It is a program to take 5 values from the user and store them in an array. Okay, and then print the element stored in the array. हैश इंक्लूड stdio.h int name। नाउ हम लोगों ने एक एरे बनाया int values ब्रैकेट में 5, प्रिंट करवाया enter 5 integers, printf enter 5 integers। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? टेकिंग इनपुट एंड स्टोरिंग इट इन एन एरे। हम लोग अब क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं और उसको हमारे एरे के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। यहाँ फॉर लूप चलाया फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 5 प्लस प्लस i। हमारा आई कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। कहाँ तक चलेगा? लेस देन 5 एंड देन प्लस प्लस आई। स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एम्परसेंट वैल्यूज ऑफ आई। अब यहाँ पे क्या होगा? ये हमसे पूछेगा एंटर 5 इंटीजर्स। हम लोग ने एंटर करा 1 -3 34 0 एंड 3, ओके। उसके बाद प्रिंट डिस्प्लेइंग इंटीजर्स। अब क्या करेंगे? हम लोग जो एलिमेंट्स हम लोगों ने एंटर करवाए हैं उनको हम लोग अब प्रिंट कराएंगे। फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 5 प्लस प्लस i। प्रिंट परसेंटेज d स्लैश n वैल्यूज ऑफ i। अब क्या होगा? जो वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पे एंटर करवाई थी वो वैल्यूज हमारी अब यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, ओके। सो आउटपुट में डिस्प्लेइंग इंटीजर्स 1 -3 34 0 and 3। So thank you so much for watching this video, and if you are new to Geek Wizard, please like, share and subscribe.